हाइलाइट्स पैकेज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से, जहां पर मुकाबला है केपी और बलूचिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान। और पहली खबर यह है कि टॉस जीता है हारिस सुहेल ने और केपी को उन्होंने पहले बैटिंग करने की दावत दी है। चार्ज किया और ऊंचा शॉट खेल सकते हैं क्योंकि सर्कल है, लेकिन इस शॉट के लिए कोई सर्कल की ऐसा ज़रूरत नहीं क्योंकि ये 6 रन्स के लिए खेल दिया है। हम बड़ी टेक्निक की बातें कर रहे थे यहाँ पे, सिकंदर फ्रंट फुट उठा के ये करते हैं वो करते हैं, उन्होंने निकल के छिक्का मार दिया। व्हाट अ शॉट। ये है T20 क्रिकेट आप लोगों के लिए। बॉलर को वार्म अप होने का मौका नहीं दिया, 2 बॉलें देखी और तीसरे पे निकल के मिड विकेट की जानिब मैक्सिमम के लिए। बैट बॉल बहुत ज़्यादा विट दे दी और 4 रन्स के लिए बड़ी आसानी से रिजवान ने इसको खेल दिया। ये इसे कहते हैं इनएक्सपीरियंस। इस बार रिजवान ने चार्ज किया लेकिन बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहा शॉट, और ये मौका है मिड ऑफ के लिए और पकड़ के इस कैच को कामयाबी दिलाई। कप्तान ने कैच किया हारिस सुहेल ने। डेब्यू पे पहली गेंद में विकेट, दूसरे मैच में पहले ओवर में विकेट, और वो भी ऑपोजिशन के कप्तान की। अगेन कोई खास शॉट नहीं थी, मेरे नहीं ख्याल रिजवान एज अ ओपनर शूट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, यहाँ पे ठीक है आई सपोज। और क्रूशल ब्रेक थ्रू मिला बलूचिस्तान की टीम को। That has been taken with Mohammad Hafiz going for another swing. Akif almost misjudged that. It was in the air and a big wicket has finally been caught by Akif at third man. Hafiz didn't look comfortable from the ball go. Justice Kaya and excellent strategy by the Balochistan team. They have drained down the runs, they have restricted the batters, and they have made sure that they play a shot like that. It's in the air. Fine leg is looking, but to no despair, it's gone for a 6 over the side screen, and a 6 by Fakhar Zaman, when that could have gone anywhere, could have been a catch, but he's awarded 6 runs. You can see Fakhar Zaman smiling because he knows how lucky he is to survive and get 6 runs of that shot. You have to feel for the bowler here. He has done nothing wrong. He has cramped up. Wide of off stump and just been a bullet boundary of another 4 back-to-back boundaries the first 2 balls. Once again, they're running hard that first one, but Akif, again, another misfield. Awarded KP a boundary of the last ball of the over, bringing up. और ये शानदार फुल शॉट। अभी जिक्र हो रहा था कि पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन एक दौर में इस शॉट को बहुत ज़्यादा अपनाते थे और शानदार छक्का लगा दिया फखर जमान ने। 10 दरख्त इस पर टक और पीसीबी की जानिब से लगाए जाएंगे। बिल्कुल सेम शॉट उन्होंने ट्राई किया और इस मर्तबा कामयाब हुए। बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन था और इस बार बार किया और गेंद सीधी आई डीप मिड विकेट के फील्डर के पास। अकबर रहमान ये कैच ले उड़े और डेंजर फखर जमान को चलता कर दिया। ये वक्त आ गया था कि जब ये दोनों मजीद खुलकर खेलें और अहम मौके पर अपनी विकेट से हाथ धो बैठे फखर। बहुत ही बड़ी कामयाबी। अगर गेम की सिचुएशन को देखा जाए तो फखर जमान इस वक्त भरपूर तैयारी में थे। Down the wicket, he plays straight. That's safe. Will always be safe, and if you can hit it that well, you don't have to worry about any fielders.
trademark shot by Shoaib Malik into the cow area and straight also. This is what he does in T20 cricket so well. He knows how to pace his innings, and now it seems that he's going to play a bit more aggressive as the middle overs are approaching. Yes, Balochistan have kept KP quiet, but not on this occasion. A good pull shot for 4 runs. Hits it hard and earns himself a maximum. So he's taking on that challenge here, Shoaib Malik from the leg spinner. That's what we are talking about. A little bit of fuller ball, and Shoaib Malik is going to dispatch it. 100 up with that 6. Excellent execution, just standing in the crease and delivering. Yeah, too full on that occasion. And that should be his 50. Good 50 under pressure. Now it's extremely important for Shoaib Malik to carry the bat or just keep for the next 3 or 4 overs. Did he get some bat onto it? Yes, he did. It's a bad ball and becomes a nightmare for the bowler with the boundary. Sahibzada coming into the party. 16 overs, 127 for 3. उठाया और ये विकेट मिल गई. अगर आप रन्स नहीं देंगे इस फॉर्मेट में तो आपको विकेट मिलती है. वही हुआ. उन्होंने रूम दिया मगर थोड़ा बहुत पीछे को चले गए. आप रूम देते हो हल्का सा और पूरा वेट इनकी बैक फुट पे था, इसलिए शॉट में पावर नहीं आई, जान नहीं आई और सीधा गेंद गया मिड ऑफ के फील्डर के पास जो कि सर्कल के अंदर खड़े थे. अभी भी सिंगल कर रहे हैं. अब आंखें बंद करके मारनी शुरू करो. अब देखिए मिडल नहीं हुआ फील्डर के पास और एक और विकेट और ये बिल्कुल अंडर प्रेशर. अब यहाँ पे नॉट आउट जाना ज़रूरी है. यहाँ पे है कि मैंने स्कोर करना है हर गेंद पे, मैंने चांस लेना चौके या छक्के का, बाउंड्री का. बाउंड्रीज नहीं मिल रही थी और इफ्तिखार को सेटल हुए बगैर ही आकर हिट आउट करना पड़ा. आखिर में ना एलिवेशन मिली, ना ही उतना फासला तय कर सके और हवा में खेल दिया. यासिर शाह ये कैच ले लेंगे. जी हाँ, रिवर्स कप बनाया, ऑस्ट्रेलियाई अंदाज में इस कैच को मुकम्मल किया यासिर ने. अच्छी इनिंग. ये मिडल नहीं हुई, गेंद बिल्कुल उनके जोन में थी शोएब मलिक के, मगर बल्ले के निचले हिस्से पे लगा और आसान कैच यासिर शाह का और बड़ी उम्दा इनिंग्स शोएब मलिक की. एक बार हवा में खेला, फिर मौका है यासिर शाह के लिए और कैच गिरा दिया उन्होंने. बहुत वक्त मिल गया था यासिर को. आखिर में आई लेवल के नीचे गेंद उनके दोनों हाथों में आने के बाद निकल गई. ये हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट के फील्डर हैं. यहाँ तो ना कोई यंगस्टर हो, अंडर प्रेशर हो तो ड्रॉप कर दे. कैचेस ड्रॉप कोई भी कर सकता है, एटीट्यूड मैटर करता है. आप रिलैक्स सिचुएशन में जाके कि कैच हो जाएगा. अच्छी डिलीवरी थी, बिल्कुल यॉर्कर लेंथ पर आई और 2 रन वहाब रियाज ने हासिल किए और इस तरह ये इनिंग्स जो है तमाम हुई. ये 20वां ओवर और 154 रन बना सकी यहाँ टीम केपी. 6 विकेटें उनकी गिरी. खैबर पख्तूनख्वा की इनिंग्स का अहवाल देखिए. 154 रन वो बना सके मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर. मोहम्मद रिजवान और हफीज़ उनसे बड़ी तवक्कुआत थी लेकिन डबल फिगर में नहीं आ सके. जहाँ तक बॉलिंग का ताल्लुक है, बलूचिस्तान की 2 विकेटें हासिल की. नौजवान आकिफ जावेद ने, उमर गुल ने एक खिलाड़ी को आउट किया. खुरम शहजाद ने फिर मुतासिर किया सब देखने वालों को और एक विकेट यहाँ हासिल की अम्माद भट्ट और यासिर शाह ने. शाहीन विल नॉट मेक इट इजी. अच्छा स्विंग मिला और गेंद थिक आउटसाइड एज के बाद थर्ड मैन रीजन में गई तो स्ट्रेट अवे ऑफ द मार्क ओवेस ज़ियाबी और बलूचिस्तान भी. और बोल्ड कर दिया पहली बॉल पर. शाहीन इज टू गुड फॉर हिम.
गेंद अंदर आया, हल्का सा लेट स्विंग हुआ और बैट और पैड के बीच में से ऑफ स्टंप ले गया। इससे बेहतर डिलीवरी जो है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं कर सकता नए बॉल के साथ। बहुत ही आइडियल साइट किसी भी फास्ट बॉलर के लिए। ये बैड लाइन और इसको बिस्मिल्लाह खान ने बड़े आराम से फ्लिक कर दिया। फुल भरोसा कर सकते हैं उनके साथ। खासी बाहर थी गेंद और थोड़ा लेट नजर आया थर्ड मैन के फील्डर मूव करते हुए। शायद वो ना रोक पाते, लेकिन अटेम्प्ट जो है वो थोड़ा सा 50% नजर आया। अच्छी ड्राइव और 4 रन हासिल होंगे। वैल्यू फॉर शॉट्स, गैप में इसको खेला बड़ी उम्दगी से। इस बार गालिबन ग्लव लगाया, अंपायर का इशारा देखना होगा। उन्होंने 4 रन दिए, तो ये एक मोमेंट था जहां शायद लगा शाहीन को कि उनका विकेट कीपर इन प्ले आ सके। 3 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो गया और इनफैक्ट नहीं, अब मुकम्मल नहीं हुआ, एक गेंद बाकी है। अच्छा बाउंसर था शाहीन की जानिब से और लकी रहे बिस्मिल्लाह खान। ये मिडल स्टंप, fall into the stumps and he gets his man. बहुत ही जबरदस्त बॉल, और क्योंकि अल्फाजों का जब तबादला होता है और जब आपको उसकी अगली ही बॉल पे ऐसी विकेट मिले तो इससे ज़्यादा एक्साइटेड बॉलर और नहीं हो सकता। और यही आप देख सकते हैं रिएक्शन से शाहीन शाह के। What a shot, square of the wicket। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन है ओवैस ज़िया का, कलाई का बड़ा खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं ये। Big hit by Uwais, fielder coming underneath it and dropped. He got underneath that, but just looked like he was not balanced enough and just dropping forward, and just the ball slipped out of Fakhar Zaman's hands, Sana. That's not a catch you want to miss when you have a target of 150 on the board. You need to take these catches. It's a regulatory catch. It's not difficult at all. Right, big hit by Uwais. Did not get the legs under that ball to go, but it still goes towards the boundary. He was looking for a maximum, but just placing over mid-on, seeing mid-on and mid-wicket being up in the circle. Big hit over extra cover for a beautiful 6 by Uwais. I feel the umpire is just checking if it went all over the top. We will just find out if it is. Yes, well, what a just beautiful extra cover shot, Sana. Excellent inside out shot, over covers, extension of the hands. Big hit by Imran, but over mid-wicket, just dancing down the track and ending this over with another boundary. Balochistan rolling for 57 for 2 after 7. Just slashed hard, and that is a boundary. Uwais got the ball moving and is on a roll. Cruise control mode for Uwais, just dealing in 4s and 6s. You cannot bowl these looseners when you're defending such a low total. Big hit by Uwais once again for another boundary. Just seeing calculated risk, seeing the ball being pitched on length, and just picking over the infield. Had to chip it over the circle and get a boundary for his team. What is very difficult for a captain here is just hopped down, and I think it got his glove, and Imran Butt is gone. He's trying to play over mid-off maybe, but just the ball creeped up on him. excellent ball. The ball actually got big on the batter. He was trying to use his feet, come down the wicket. I think he was trying to play it over mid-on, but the bowler got the better of him. और ये एक और विकेट मिल गई इस बार। ये बहुत ही अनमोल विकेट है हारिस सुहेल की। लूज शॉट उन्होंने खेला, बिल्कुल सॉफ्ट डिसमिसल जो कहा जाता है
उसी अंदाज में वापस गए। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में आप या सॉफ्ट हैंड से खेलते हो या पूरी शॉट मारते हो। यहाँ पर गैप में खेलने में कामयाब हुए। ये अच्छा स्ट्रोक था उवैस का। एक और बुरी डिलीवरी और एक और बाउंड्री। ये प्रेशर ऑफ होता हुआ बलोचिस्तान पे 2 बाउंड्रीज बड़ी इंपॉर्टेंट मिली इस ओवर में। और इसे बहुत लेट खेला, बहुत गेंद फाइन गई। विकेट कीपर इंटरेस्टेड थे लेकिन रिजवान की पहुंच से बाहर थी और तेज भी चौका लगाकर अपनी 20 सेंचुरी मुकम्मल की। अच्छी डिफ्लेक्शन थी ये उवैस ज़िया की। और रन इंपॉर्टेंट और ये बड़ी क्रूशल इनिंग खेल रहे हैं। 28 गेंदों पर 52 उनका स्कोर। Nice shot. He can just stand and admire his hit. Brilliant 6. 10 more trees to be planted by PCB and Tuck. Yes, it was there to be hit, and there was nice balance by Owesia. Yeah, you're right. We saw that yesterday as well. That's a boundary. Thick outside edge. That's the end of the over and a 50 partnership between the two. 120 for 4. Yeah, nicely played. It was a quick Yorker. Wow, cracking sound. Another maximum here. Brilliantly done. Ois is just toying with the bowlers now. And it was right in the slot for him. And he was ready for this length. और इसके साथ ही बलोचिस्तान की बड़ी उम्दा जीत 6 विकेटों से। और क्या ज़बरदस्त इनिंग्स अवैस ज़िया की। 92 रन की। अकबर की भी सेंसिबल इनिंग्स। 24 रन उन्होंने किए 22 गेंदों पर। यहाँ बलोचिस्तान की टीम ने ये 6 विकेटों से मैच जीता है। उवैस ज़िया ने मैच विनिंग इनिंग खेली 92 रन्स की। उनकी बैटिंग की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। हालांकि अब्दुल वाहिद डेब्यू पर 0 पर आउट हो गए थे। बिस्मिल्लाह खान आज 18 से आगे नहीं बढ़ सके और आखिर में अच्छा साथ दिया। 4 विकेटें 68 पर गिरने के बाद अकबर रहमान ने 24 रन के साथ। शाहीन अफरीदी ने अपनी फॉर्म को बरकरार रखा। 2 विकेटें हासिल की। एक खिलाड़ी को अरशद इकबाल और वहाब रियाज ने आउट किया। स्पिनर्स के लिए ख़ास मदद नहीं थी। हफीज़ और आसिफ अफरीदी ने एक ओवर किया। तो ये मैच समरी है। खैबर पख्तूनख्वा ने पहले बैटिंग की, 154 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। शुएब मलिक ने निस्फ सेंचुरी बनाई और जवाब में बलूचिस्तान ने ये मैच 6 विकेटों से जीत लिया और बआसानी उन्होंने लकीर पार कर ली। उवैस ज़िया ने 92 रन नॉट आउट की बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली। उम्मीद है आपको ये हाइलाइट्स पसंद आई होंगी। अगले मैच की हाइलाइट्स के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।